پاکستان کا دوسرا کمیونیکیشن سیٹلائٹ MM-1 لانچ کر دیا گیا۔ اسپارکو کے سیٹلائٹ کو چین کے شی چانگ لانچنگ سینٹر سے خلا میں روانہ کیا گیا۔ پاکستان بھر میں ٹی وی نشریات، سیلولر فون سروس اور تیز ترین انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کی جا سکے گی۔ ترجمان اسپارکو کے مطابق سیٹلائٹ کو مدار تک پہنچنے میں 3 سے 4 روز لگ سکتے ہیں۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی اور وزیر اعظم شہباز شریف کی مواصلاتی سیٹلائٹ کی کامیاب لانچنگ پر قوم کو مبارکباد۔ 9 مئی کے مجرموں کے خلاف کارروائی کے بغیر ملک سازشی عناصر کے ہاتھوں یرغمال رہے گا۔ پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے 9 مئی حملوں کے ہر کردار کو منطقی انجام تک پہنچانا ہوگا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت 13ویں فارمیشن کانفرنس کے شرکاء کا اعادہ۔ ISPR سے جاری اعلامیے کے مطابق فورم کے شرکاء نے کہا، ریاستی اداروں بالخصوص افواج پاکستان کے خلاف جاری ڈیجیٹل دہشت گردی مذموم سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے بیرونی سہولت کاروں کی مدد سے کی جا رہی ہے۔ اس کا مقصد جھوٹ اور پروپیگنڈا کے ذریعے پاکستانی قوم میں مایوسی پیدا کرنا اور قومی اداروں بالخصوص افواج پاکستان اور عوام کے درمیان خلیج ڈالنا ہے۔ ملک کے وسیع تر مفاد میں لازم ہے 9 مئی کے منصوبہ سازوں، مجرموں، اس کی حوصلہ افزائی کرنے والوں اور سہولت کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ افواج پاکستان کی فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں جیو اسٹریٹجک حالات، قومی سلامتی کے لیے ابھرتے ہوئے چیلنجز اور ملٹی ڈومین خطرات سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کی حکمت عملی کے بارے میں تفصیلی تبادلہ خیال۔ فورم نے افغانستان کی سرحد پار سے مسلسل خلاف ورزیوں اور افغان سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے دہشت گردی کی منصوبہ بندی پر سخت تحفظات کا اظہار کیا۔ شرکاء کا دہشت گردی کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے نئے ضم شدہ اضلاع کی ترقی کی اہمیت پر بھی زور۔ کانفرنس میں قیام امن کے لیے ان اضلاع کے عوام کی بے شمار قربانیوں کو بھی سراہا گیا۔ فورم کا بھارت میں سیاسی مقاصد کے لیے بڑھتے ہوئے فاشزم، اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ انسانیت سوچ سلوک پر تشویش کا اظہار۔ پاک فوج نے حق کی خود ارادیت کے لیے کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد اور فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا اور اسرائیلی جنگی جرائم کی شدید مذمت کی۔ FIA سائبر ونگ کا بانی PTI کے خلاف انکوائری کا فیصلہ۔ سوشل میڈیا پر شیخ مجیب الرحمان سے متعلق پروپیگنڈا ویڈیو اپلوڈ کرنے پر تحقیقات ہوں گی۔ ویڈیو کس کی اجازت اور کہاں سے اپلوڈ کی گئی؟ FIA سائبر ونگ بانی PTI بیرسٹر گوہر، عمر ایوب اور رؤف حسن سے پوچھ گچھ کرے گا۔ کچھ روز پہلے بانی PTI کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے 1971 بارے من گھڑت پروپیگنڈا ویڈیو پوسٹ کی گئی۔ حکومت نے فیض آباد دھرنا کیس پر نئی کابینہ کمیٹی تشکیل دے دی۔ دھرنے کی تحقیقات کے لیے نیا کمیشن بنانا چاہیے یا نہیں، فیصلہ کمیٹی کرے گی۔ ذرائع کابینہ ڈویژن کے مطابق کابینہ کمیٹی 2 ہفتے میں اپنی سفارشات مرتب کرے گی۔ کابینہ کمیٹی کی سربراہی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کریں گے۔ وزیر داخلہ، وزیر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، اٹارنی جنرل اور سیکرٹری قانون کمیٹی کے ممبران ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کیس کی براہ راست نشریات کی اجازت نہ دی۔ خیبر پختونخوا حکومت کی درخواست 4-1 سے مسترد ہو گئی۔ بانی PTI مقدمے میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے۔ عدالت کا بانی PTI کو مقدمے کا ریکارڈ فراہم کرنے کا حکم۔ جیل میں خواجہ حارث سمیت 2 وکیلوں سے ملاقات کی اجازت بھی دے دی۔ فیصلے کے خلاف اپیلوں پر سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی۔ Pakistan clear policy mindset as structured the National Action Plan, National Internal Security Policy and National Counter-Extremism Policy Guidelines. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں سوشل میڈیا انتہا پسندوں کے ہاتھ میں ہتھیار ہے۔ دہشت گرد واقعات میں سرحد پار عناصر کے ملوث ہونے کے شواہد موجود۔ ہم دشمن عناصر اور ان کے مراکز کا کلا کما ضروری ہے۔ پاکستان دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا پر حملے کا مقدمہ درج۔ مقدمہ PTI وکلا علی اعجاز بٹر، نعیم پنجوتھا کے خلاف درج کیا گیا۔ FIR میں دہشت گردی سمیت دیگر دفعات شامل۔ گزشتہ روز خاور مانیکا پر نکاح کیس کی سماعت پر حملہ کیا گیا تھا۔
इजाफी गंदम की दरामद में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ एक्शन। जराये के मुताबिक वजीर आजम ने 4 मुअत्तल अफसरान के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी दे दी। वजीर आजम ने सेक्रेटरी तिजारत सालेह अहमद फारूकी को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया। मुअत्तल अफसरान के खिलाफ सिविल सर्वेंट्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स के तहत इंक्वायरी होगी। गंदम तहकीकात पर वफाकी हुकूमत के फैसलों पर एतराजात सामने आ गए। जराये के मुताबिक मुअत्तल किए जाने वाले एक अफसर का गंदम की फसल के अमूर के साथ ताल्लुक ही नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की MQM को बिजली और गैस लोड शेडिंग में कमी की यकीन दहानी। सिंध के अवाम को आइंदा वफाकी बजट में बड़ा रिलीफ दिया जाएगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में मुत्तहिदा वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। तर्जुमान MQM के मुताबिक वफ्द ने सिंध के नौजवानों को रोजगार की फराहमी, महंगाई का मसला उठाया। वज़ीर आज़म का सिंध के नौजवानों के लिए वफाक में मेरिट पर नौकरियां, कारोबार के लिए कर्ज और सोलर पैनल्स भी देने का वादा। ऑटिज्म के इलाज के लिए इदारा बनाएंगे। काबीना इजलास में फंड्स की मंजूरी दे चुके वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का खुसूसी बच्चों में आला समात तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब ने व्हील चेयर प्रोग्राम शुरू किया। जिसे व्हील चेयर चाहिए वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए, उसके घर पहुंचाएंगे। स्पेशल एजुकेशन के लिए हर जिला में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का आज़म भी जाहिर किया। जिना अस्पताल में ज़ेरे तामीर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मरीम नवाज के नाम से मंसूब कर दिया गया। महकमा सेहत ने मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हायर एजुकेशन कमीशन अब सिर्फ वफाकी यूनिवर्सिटीज को फंड्स देगा। वफाकी हुकूमत और प्लानिंग कमीशन ने HEC के बजट पर बड़ा कट लगा दिया। वफाकी हुकूमत ने रिकरंट बजट 65 अरब से 25 अरब रुपए कर दिया। प्लानिंग कमीशन ने तरक्याती बजट 59 अरब से 21 अरब रुपए कर दिया। वफाकी हायर एजुकेशन कमीशन ने मुल्क भर की जामियात के लिए 126 अरब रुपए मांगे थे। चारों सूबों की जामियात के वाइस चांसलर्स का हंगामी इजलास। वज़ीर आज़म और वज़ीर खजाना को खुतूत लिखने का फैसला। आला तालीम पर कट लगने से गरीब तलबा का तालीमी मुस्तकबिल भी तारीक होने का खदशा। 2 दिन पहले वफाकी हुकूमत ने सिर्फ 25 अरब रुपया मुख्तस किया, और वो भी सिर्फ जो वफाकी दारुल हुकूमत की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए, और जो 4 सूबों की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए कोई 1 रुपया भी नहीं। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बजट के बिल्कुल 1 हफ्ता पहले जो है अचानक जो है उनका बजट जो है वो ख़त्म कर दिया गया। हायर एजुकेशन कमीशन के बजट में गैर मामूली कमी पर असातिज़ा तंजीमों का इजहारी तशवीश। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के सदर डॉक्टर अमजद अब्बास खान मगजी कहते हैं, हुकूमती इक़दाम यूनिवर्सिटीज पर ताले लगाने के मुतरादिफ है। तालीम के साथ खिलवाड़ बंद किया जाए। पंजाब यूनिवर्सिटी एकेडमिक एसोसिएशन के नायब सदर डॉक्टर गालिब अता बोले, HEC को वफाकी जामियात तक महदूद करना इंतहाई तशवीशनाक। 126 अरब के मांगने पर सिर्फ 25 अरब रुपए मिलेंगे। सूबा यूनिवर्सिटीज बिल्कुल नजरअंदाज। हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करे। हमें ये अंदाज़ा होता है कि यूनिवर्सिटी के जो बजट्स हैं वो पिछले 3 सालों से बिल्कुल स्टैग्नेट किए हुए हैं हायर एजुकेशन कमीशन ने। इस दफ़ा तो 126 अरब रुपया मांगा गया था हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से, वफाकी हुकूमत से मांगा गया था, लेकिन वफाकी हुकूमत ने वो तमाम की तमाम अमाउंट रोक ली और इसकी बजाय 25 अरब रुपया सिर्फ वफाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए मुख्तस कर दिया। महंगी बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। अप्रैल की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत बिजली 3 रुपए 49 पैसे महंगी करने की दरखास्त पर फैसला महफूज। नेपरा अथॉरिटी अदाद-ओ-शुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। बिजली महंगी होने से सार्फिन पर 34 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। चेयरमैन नेपरा का कहना है कि हुकूमत ने नुकसानात की बुनियाद पर लोड शेडिंग करनी है तो नेपरा एक्ट में तरमीम करना होगी। जब तक हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अपना रुख का तयन सही नहीं करती और अपनी इन लॉसेस को कंट्रोल नहीं करती सूबाई हुकूमतों की मदद की से, उस वक्त तक ये लोड शेडिंग इसी तकरीबन रेशियो से इन हाई लॉस फीडर्स के ऊपर, सिर्फ नुकसान वाली फीडर्स के ऊपर जारी रहेगी। लोड शेडिंग के खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दाम को यकीनी बना रहे हैं। सारिफीन की ओवर बिलिंग का अजाला किया जा रहा है।
वफाकी वजीर तवानाई उवैस लगारी और अली परवेज मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उवैस लगारी का कहना है सूबाई हुकूमतों के ताउन से सिस्टम में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। जहां 20 से 100% तक नुकसानात हैं वहां लोड शेडिंग हुई। अली परवेज मलिक बोले, नून लीग की क़यादत को अवाम की तकलीफ का एहसास है, रिलीफ के लिए इक़दामात कर रहे हैं। डायलॉग्स के ज़रिए, सुल्तान राई की बड़कों के ज़रिए चीज़ें हासिल नहीं होती, स्विच ऑन ऑफ से मसाइल हल नहीं होते, बल्कि हमने अपने सूबे का मुकदमा वफाक के साथ दलील और दलाइल के साथ लड़ना है। स्विच ऑन ऑफ से मसाइल हल नहीं हो सकते। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग थोड़ी कम हुई है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, वजीर आला अली अमीन गंडापुर से कहा, डायलॉग से ही मसाइल हल होते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू, मसाइल और उनके पायदार हल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का हुकूमत की सरमायाकार दोस्त पॉलिसीज पर वजीर आजम को खिराज तहसीन। सिंध हुकूमत ने कराची में लोड शेडिंग में कमी के लिए के इलेक्ट्रिक को फार्मूला पेश कर दिया। सिंध के वजीर तवानाई और मनसूबा बंदी नासिर हुसैन शाह का कहना है के इलेक्ट्रिक को तजवीज़ किया है लोड शेडिंग वाले इलाकों में सार्फिन से मौजूदा बिल की वसूली शुरू की जाए। के इलेक्ट्रिक फिलहाल साबका बिलों की वसूली पर इसरार ना करे। मुल्क के बेशतर इलाकों का मौसम शदीद गर्म और खुश्क। शहर कायद में हीट वेव जारी। जैकबाबाद, तुरबत और लाड़काना में दर्जा हरारत 48 डिग्री को छू गया। सिब्बी, लसपेला, मोंजदौड़ो, बहावलनगर में पारा 47 डिग्री रिकॉर्ड। रहीम यार खान, खैरपुर, सखर, पटीतन, भक्कर, बहावलपुर में 46 डिग्री की गर्मी। लाहौर 45, फैसलाबाद और मुल्तान में दर्जा हरारत 44 डिग्री रिकॉर्ड। पेशावर 41, इस्लामाबाद 40 और कराची में पारा 39 डिग्री को छू गया। लाहौर समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश की पेशगोई। बिजली के एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों का पारा हाई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल बन गई। पेशावर में 8 से 10 घंटे, मज़ाफाती इलाकों में 18 घंटे तक लोड शेडिंग। शहरियों का शदीद गर्मी में लोड शेडिंग पर काबू पाने का मुतालबा। कहते हैं बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, लेकिन लोड शेडिंग कम नहीं हो रही। सड़कों पर मलबा फेंकने वालों को गिरफ्तार करने का फैसला। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा काबीना इजलास में उबाड़ों में असातिज़ा की तकर्रियों की मंजूरी दे दी। सिंध में 48 महकमे हैं, 16 को डिजिटलाइज किया जाएगा। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सालाना 30 अरब खर्च कर रहे हैं। ईद उल अजहा कब होगी? महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। क्लाइमेट डेटा प्रोसेसिंग सेंटर के मुताबिक ज़िलहज का चांद 7 जून बरोज जुमे को नजर आने का कवी इम्कान। ईद उल अजहा 17 जून बरोज पीर को होने की तवक्को। पाकिस्तान और आज़रबाईजान दो तरफा तिजारती और बरादराना ताल्लुकात बढ़ाने के लिए पुरआज़म। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारिजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारिजा जिहोन बैरामोफ का कहना था, पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दो तरफा मजबूत ताल्लुकात हैं। दौरे का मकसद दो तरफा तिजारती और पाकिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात बढ़ाना है। इसहाक डार बोले, तवानाई सेक्टर में ताउन बढ़ाने पर बात हुई है। स्टॉक मार्केट में कारोबार के तीसरे रोज तेजी। 100 इंडेक्स में 42 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। करेंसी मार्केट में रुपया दबाव का शिकार रहा। इंपोर्टर्स की डिमांड बढ़ने के बायस इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे महंगा होकर 278 रुपए 50 पैसे का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $17 फी औंस, जबकि पाकिस्तान में 1,500 रुपए फी तोला सस्ता। सोने की नई कीमत 2,41,200 रुपए हो गई।